Bismillahirrahmanirrahim, fourth year. Assalamu alaikum. We were studying about the skin of the vertebrates, and today I will tell you about the skin of the reptiles. Okay. Reptiles is a fully adapted to terrestrial environment, and their skin is also adapted for the terrestrial environment. Their epidermis, outermost layer जो है epidermis, it is called as stratum corneum. Stratum corneum is thick keratinized layer. It lacks glands. It is modified to form different structures like in snakes and turtles. It is modified to scutes, which are thick scales, and similarly it is modified into beaks in the turtles, and it is modified into plates on the tail of the snake, especially on the rattlesnakes, okay, claws, plexus, and spiny crest on most of the other reptiles. What are the important functions performed by the stratum corneum? It resists abrasion, it inhibits dehydration process, and protects like of the armor. And the shedding of the molting also exists in the reptiles. ठीक है, रिप्टाइल्स जो हैं जैसे स्नेक्स और लिजर्ड्स हैं, इनके अंदर जो न्यू एपिडर्मिस जो है जो वो डेवलप कर जाती है, तो ओल्ड वन जो है वो वेस्ट हो जाती है. अ फ्लूइड एक्चुअली डिफ्यूज्ड बिटवीन द टू लेयर्स व्हिच हैव्स दिस सेपरेशन. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ द स्किन ऑफ द रेप्टाइल्स. ओके, इसकी डायग्राम मैं आपको सेंड कर दूँगी. ठीक है, रेप्टाइल्स की. और नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्किन ऑफ द बर्ड्स. ठीक है, स्किन ऑफ द बर्ड्स शो मेनी रेप्टिलियन फीचर्स बिकॉज दिस आर इवॉल्व फ्रॉम द birds. These are actually evolved from the reptiles. Okay, that's why it has no epidermal glands. Only single gland is present, which is called as uropygial or the preen glands. The epidermis is thin cover over the bird's body. ठीक है, और ये 1 2 3 सेल थिक लेयर होती है. थिन स्किन्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स जो हैं. एपिडर्मिस जो है, इट कंटेन्स feathers. Feathers is the most prominent parts of the epidermis. Feathers जो हैं, these are derived from the scales of the reptilian ancestors. The dermis of the birds is similar to dermis of the reptiles. It contains blood, lymphatic vessels, and the nerves. It also contains sensory bodies, and these bodies, these are epidermally derived. Air spaces, these are part of the avian's respiratory system, and these air spaces extend into the dermis. इसके अलावा स्टूडेंट स्मूथ जो मसल्स हैं, फाइबर्स, दीज आर प्रेजेंट इन द डर्मिस, एंड दे हैव कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट. दे आर एसोसिएटेड विद द feathers, and they control the position of the feathers. Feather position is important in thermal regulation, flying, and behavior. Similarly, aquatic birds, they may also have fat deposits in the hypodermal layer. ठीक है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसके साथ ही फैट्स का डिपोजिशन होता है, एंड इट स्टोर्स एनर्जी एंड इंसुलेट द बॉडी. यानी कि बॉडी टेम्परेचर में भी ये बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करती है. ओके, और इसकी भी जो स्किन की जो ये बर्ड्स की डायग्राम है, ये वाली, ये मैं आपको सेंड करूँगी, एंड यू विल ड्रॉ ऑन योर नोटबुक्स. ओके, नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द स्किन ऑफ द मैमल्स. ठीक है, स्ट्रक्चर जो है स्किन का देखें, हेयर्स जो है वो प्रेजेंट है. आपको पता है मैमल्स की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं. ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एपिडर्मल ग्लैंड्स जो है वो भी प्रेजेंट है, एंड दे हाईली स्ट्रेटिफाइड, यानी कि मल्टी लेयर्ड जो है वो स्किन होती है, एंड इट इज़ कॉर्निफाइड. कॉर्निफाइड एपिडर्मिस का मतलब है कि हार्ड होती है ये, एंड एपिडर्मिस इन मेनी टाइम्स थिकर देन द एपिडर्मिस ऑफ द reptiles or the birds. And the skin of the mammals is composed of different layers. सबसे outermost जो है वो epidermis है, जिसके अंदर बहुत सारी layers होती हैं, और different type of cells जो हैं वो present होते हैं. stratum corneum जो है, the outer dead layer जो है cells की, जिसको stratum corneum कहते हैं. rapid cell deviance takes place in the deepest layer of the epidermis and pushes the cells towards the surface of the skin, and these cells die and become the keratinized. Okay, and keratinized cells जो हैं, they form the outer skin layer. This layer is called as stratum corneum. Keratin is insoluble in water, and therefore the stratum corneum prevents dehydration. ठीक है, it defends the body from toxic substances and microorganisms. इसी तरह से stratum malpighium है, it is present below the stratum corneum, and it is composed of living cell, and these cells continuously divide the stratum corneum. Okay,
नेक्स्ट जो लेयर है, नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, इट इज़ डर्मिस लेयर एंड इट इज़ थिकेस्ट पोर्शन ऑफ द मेमेलियन स्किन. इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, हेयर फॉलिकल्स, स्मॉल मसल्स, ग्लैंड्स भी हैं. और इसके अलावा लेदर इज़ मेड फ्रॉम द डर्मिस बाय स्पेशल टैनिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम लेदर प्रोसेस कहते हैं. उसके बाद जो हाइपोडर्मिस है, इट इज़ इनरमोस्ट लेयर, और it is its composition is different from other vertebrate classes. Blood vessels, they pass from the hypodermis and outer into the dermis, and blood vessels these are absent in the epidermis. Okay, इसके अंदर connective tissues हैं और adipose tissues हैं, skeletal muscles हैं. Functions of the mammalian skin, ठीक है. Skin जो है, it regulates the body temperature in humans and a few other animals, and skin has many sweat glands. इसके अलावा जो इट इज़ यूज्ड फॉर द perspiring or the sweating process. The skin screen out harmful ultraviolet rays from the skin from the sun too, and skin also absorb rays. These rays convert the chemical in the skin into the vitamin D. The skin is also very important sense organs, and it contains many sensory receptors for the hearing, cold, touch, pressure and the pain. ठीक है. और इसके अलावा जो मैमल्स की स्किन है, उसके अंदर ग्लैंड्स भी हैं, स्किन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि डोरिफिरस ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं. और इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं, ये स्वेट सिक्रीट करते हैं ड्यूरिंग द पेस्पिरेशन प्रोसेस, और ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट. ठीक है. फिर हम जो हैं वो भी सर्टन स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं. और ये जो हैं, ये इस तरह के केमिकल्स हैं दैट एन एनिमल सिक्रीट्स एंड दैट कम्युनिकेट्स विद द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज टू गेट सर्टन बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस. ठीक है. ये बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस के लिए जो हैं ये यूज़ होते हैं. और इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स हैं और ऑयल ग्लैंड्स हैं. ठीक है. और ये जो हैं, दिस आर कनेक्टेड टू द हेयर फॉलिकल्स इन द डर्मिस. ठीक है. और जो सीबम जो है, ये लुब्रिकेट करता है, प्रोटेक्ट द हेयर्स, एंड सीबम इज़ इट इज़ परमिएबिलिटी बैरियर. इट एक्ट एज एमोलियंट, यानी कि ये स्किन को सॉफ्ट बनाता है. इट एक्ट एज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द माइक्रोनिज्म. सीबम जो है इसके अलावा फिरामून के तौर पर भी एक्ट करता है. फिर कलरेशन, ममेलियन की स्किन के अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, जो कि ममेलियन स्किन को कलर देते हैं. मेलानिन बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, एपिडर्मल लेयर में पाया जाता है. दीज आर आल्सो प्रेजेंट द हेयर, एंड दीज आर प्रेजेंट इन द स्पेशलाइज सेल्स, जिसको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं. फिर एनाटोमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, और दी स्ट्रक्चर्स एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट और प्रोड्यूसेस दी कलर्स. एंड ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड इन सम blood cells also produces color, and blood is present in some superficial blood vessels in the skin. Okay. अच्छा जी, एडवांटेज जो है स्किन कलरेशन के, ब्राइट जो स्किन कलर है, दिस आर प्रोड्यूस्ड इन वेनोमस या पॉइजनस, टॉक्सिक और द बैड टेस्टिंग एनिमल्स. और ये जो हैं प्रेडेटर्स को जो है वो डिटर करते हैं या डिस्करेज करते हैं. सम स्किन कलर जो हैं ये एनिमल को हाइड करने में भी रोल प्ले करते हैं. ठीक है. यानी कि ये मिमिक है अकॉर्डिंग टू दियर बैकग्राउंड कलरेशन. कलर जो है इट प्ले रोल इन द सोशल कम्युनिकेशन टू, एंड दे हेल्प मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज टू आइडेंटिफाई ईच अदर. इसके अलावा जो स्किन है, स्किन कलर प्ले रोल इन दियर सेक्स, रिप्रोडक्टिव स्टेटस और द सोशल रैंक्स. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हेयर्स जो हैं, दिस आर आल्सो प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ द मैमल्स. और ये कैरेटिन फील्ड सेल्स हैं, और ये एपिडर्मिस से डेवलप होते हैं. इनके अंदर हेयर शेफ्ट है, द पोर्शन ऑफ द हेयर डेट कम्स आउट फ्रॉम द स्किन, उसको हेयर शेफ्ट कहते हैं. रूट है, पोर्शन ऑफ द हेयर एम्बेडेड इन द स्किन. ठीक है. और इसके अलावा एरेक्टर पिलाई है, इट इज़ स्मूथ मसल्स एरेक्टर पिलाई. ठीक है. इट इज़ अटैच टू द शीथ ऑफ द हेयर फॉलिकल. ओके. और इसके अलावा जो है दिस सेक्शन वार्म्स द बॉडी इन अदर एनिमल्स. अगर ये जो हेयर है ना, ये बहुत सारा डिफरेंट फंक्शंस जो हैं, एडवांटेजेस हैं इनकी. एक तो ये बॉडी को वार्म रखते हैं. एयर इज़ फिल्ड बिटवीन द हेयर्स. ठीक है. ये इंसुलेटिंग लेयर के तौर पर यूज़ करते हैं. सम एनिमल्स फ्राइटन एंड इरेक्ट देयर हेयर्स, इट मेक्स देम लार्जर, एंड दस द प्रेडेटर्स डोंट अटैक देम. ठीक है. इसके अलावा स्टूडेंट्स नेल्स है, जो कि स्किन स्ट्रक्चर के साथ पाए जाते हैं
मैमल्स के अंदर। ये भी मॉडिफिकेशंस हैं एपिडर्मिस की, और नेल्स जो हैं ये फ्लैट हॉर्नी प्लेट्स हैं, और ये भी डोर्सल सरफेस ऑफ द डिस्टल सेगमेंट्स में पाई जाती हैं। एंड सम मैमल्स दे हैव क्लॉज एंड हूव्स, और इसके अलावा हॉर्न्स जो हैं दीज आर आल्सो कैरेक्टराइज्ड डेरिवेटिव्स ऑफ द मेमेलियन स्किन। हॉर्न्स आपने देखा है एनिमल्स के अंदर जो हॉर्न्स पाए जाते हैं जिनको सींग भी कहते हैं। एंड द बेलिन प्लेट्स दिस आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ द toothless whales. Okay, so this is about the skin of the mammals. ये जो है ये देखें, ये स्किन है मैमल की, और इसकी भी मैं पिक्चर भी ले लेती हूँ और ये मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। और सो दिस इज़ अबाउट दी स्किन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट ग्रुप्स।